गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सर्कल ऑफ क्लैरिटी। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। द रीजन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी यूज एआई in analyzing conference calls of companies, and this is not just a theoretical thing. We are going to do this live in the session itself. Okay, so we'll do a real life company ka con call analysis, so the practical demonstration in the session itself, so you'll get an idea. Also, along with that, I'll also share the prompt with you guys that I have been using so far to analyze companies. And this is the best time because today is 15th Feb, right? So some of you might know that we are at the end of quarterly results, right? So Q3 जो होता है, Q3 is October, November, December, 30th December, correct? And 45 days from 30th of December, 31st of December is the due date to file the quarter three results of companies. तो अभी एग्जैक्टली टुडे द लास्ट डे। तो सारे कंपनीज का नए कॉन्फ्रेंस कॉल्स आ गए, सारे कंपनीज के प्रेजेंटेशंस, पीपीटी रिजल्ट्स आ गए। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू डीप डाइव। और लॉट ऑफ कंपनीज सीम एक्साइटिंग राइट नाउ, but the problem is कि if you are alone, yes, and if you don't have people, a team of research analysts with us, how can we analyze so many companies, right? So the best thing is to use AI so that अपना universe of companies increases. अगर आप पहले 3 या 4 कंपनी को ट्रैक कर पा रहे थे, using AI now you'll be able to track at least 10 to 12 companies because it takes less time to analyze a company now. Yes. So without wasting time, let us start. Again, a short disclaimer that whatever we'll be discussing is for educational purposes only. There's a reason why, because in today's session, we'll have to take real companies. We'll have to discuss them in detail. Yes. So whatever companies I'm taking is just for a discussion purposes. Okay. It is not a buy or sell recommendation. Okay. There are a few new people to the club, so let me introduce myself. My name is Neel Randeria. I am a CA. I am also done with my first 2 levels of CFA. Professionally speaking, I am a practicing CA. So my practice, I have my office in Mumbai. We do income tax returns, GST, audit, virtual CFO services. Apart from that, it's been more than 4 years now that I've been teaching finance, also helping few family offices to do equity research and meet managements and so on and so forth. So that is just about me. We'll now start with our today's session of conference calls. Okay, of how to analyze कॉन कॉल्स। कॉन्फ्रेंस कॉल्स क्या होता है, सारे कंपनीज करते हैं क्या? सो इन इंडिया लेट्स से देयर आर 5000 to 6000 companies listed in the on the stock market. Okay, 5 to 6000 companies. Now, do all companies conduct conference calls? When do they conduct conference calls? What is this thing? Not all companies in India conduct a conference call. सारे कंपनीज नहीं करते हैं। सर व्हाई इज इट नॉट कंपल्सरी? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, सो कॉन्फ्रेंस कॉल करना कंपल्सरी है क्या? इज इट मैंडेटरी कि गवर्नमेंट ने बोला है, सेबी ने बोला है? नहीं, इट इज एन ऑप्शनल थिंग। यू मे चूज टू conduct conference calls. Okay, so firstly, it is an optional thing. So not all 5000 companies do. Generally, the trend is बड़े कंपनीज करते हैं. Big companies actually conduct conference calls. Okay, if there is a big company, good size company not doing conference calls, it is not viewed very positively. ओके, इन द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी अगर कोई कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करता, इट इज व्यूड के व्हाई डू दे नॉट वांट टू डू, आर दे हाइडिंग समथिंग, व्हाई दे नॉट रेडी टू स्पीक टू एनालिस्ट्स? यस, तो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बोला जाता. सो मोर एंड मोर कंपनीज आर एनकरेज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कंडक्ट कॉन्फ्रेंस कॉल्स. सो पहला चीज कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है. सो जरूरी नहीं है ऑल 5000 कंपनीज कंडक्ट कॉन कॉल्स, दे डू नॉट डू दैट. ओके, सो फर्स्ट थिंग, इट इज एन ऑप्शनल थिंग, सब नहीं करता. सेकेंड, होता क्या है कॉन्फ्रेंस कॉल? सो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसा वर्क करता है? एवरी क्वार्टर, okay, when quarter results, so in India every listed company is mandated to come up with their results, okay, within 45 days from the end of the quarter. Okay, तो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मार्च एंड जून, तो 30th जून से विद इन 45 days दे हैव टू कम अप विद द रिजल्ट्स. तो व्हेन एज सून एज दे कम अप विद द रिजल्ट्स, जब रिजल्ट आता है, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, व्हेन दे क्वार्टर का रिजल्ट आता है, एज सून एज द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड विद इन मे बी 5 hours, 6 hours, or maybe on the next day, the company will organize a conference call. कॉन्फ्रेंस कॉल में होता क्या है?
एक साइड पे मैनेजमेंट के लोग होंगे, ओके, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो द सीईओ, एमडी, सीएफओ ऑफ द कंपनी विल सिट. ऑन द अदर हैंड एनी वन ऑफ अस कैन अटेंड. ओके, कोई भी अटेंड कर सकता है कॉन्फ्रेंस कॉल. यू हैव टू जस्ट रजिस्टर फॉर इट बिफोर हैंड. अब रजिस्टर कर दो, सिंपल प्रोसेस है. अब रजिस्टर, यू कैन सिट फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल. ठीक है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, नथिंग लाइक दैट. ओके, you can sit and then ask questions to the management. So, sir, why is this document important? Because everything else, annual report हो, सब हो, everything else is written. Okay, you cannot ask. उनको जो बताना है, okay, annual report is the company's narrative. They will, if they want to show themselves in a certain way, they'll draft the annual report in a certain way. Okay, तो conference call is the most honest document. बिकॉज यहाँ पे एनालिस्ट, कुछ भी आप बोलो, एनालिस्ट इज गोइंग टू आस्क हार्ड क्वेश्चंस. सो कॉन्फ्रेंस कॉल्स में मैनेजमेंट इज पुट, यू नो, एट द सेंटर एंड दे बीन आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो ये एक चीज होता है. कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है? मैनेजमेंट के साइड, एनालिस्ट, शेयर होल्डर्स, एनी वन ऑफ अस रिटेल इन्वेस्टर कैन सिट फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल एंड आस्क क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट. ओके, कि लास्ट ईयर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट क्यों ज्यादा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं, व्हाट इज द थिंग, यू नो. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द रिजल्ट. तो पहले रिजल्ट अनाउंस होता है, विद इन मे बी 5-6 आवर्स और विद इन अ डे कॉन्फ्रेंस कॉल्स कंडक्ट करते वो लोग. यस, हमारा क्या काम है? एज सुन एज द कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट कम्स आउट, वी हैव टू टेक दैट ट्रांसक्रिप्ट एंड देन रीड इट. इफ यू गाइस हैवंट सीन अ ट्रांसक्रिप्ट, अपन अभी एक ट्रांसक्रिप्ट भी देख लेते हैं. ठीक है, इफ यू वांट. द पॉइंट इज, ट्रांसक्रिप्ट इज समवॉट 8, 10 to 12 पेजेस लॉन्ग. ओके, अभी उसको आप एआई यूज करके कैसे शॉर्टन कर सकते हो, व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ. ठीक है. सो आई हैव अ प्रॉम्प्ट दैट आई बीन यूजिंग सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स, ओके, टू एनालाइज कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. We will go through the whole prompt right now, and then we'll try it and on different companies in the session itself. Everyone in the class, everyone in the session is ready? Should we try? This is the prompt, okay, that I've been using. बहुत सारे iterations करने के बाद I've come up with this prompt. So let's एक बार go through the prompt and then we'll do the testing of the prompt. Okay, so we start the prompt with, you are a highly experienced equity research analyst having 10 plus years in, in markets, tracked companies across full business cycles. So you have to establish that AI is not someone who is a beginner. He is an experienced research analyst. Your strength is identifying the real story behind earnings conference calls, true business momentum, management intent, risk, and future direction. I will provide an earnings con call transcript of an Indian listed company. Treat this as a portfolio company and produce a clear, structured, investor relevant analysis. So you have told him that this is not for educational purposes, this is for investment purposes. सोचना कैसा एआई को, बी 100% फैक्चुअल. काफी टाइम ना एआई एक्स्ट्रापोलेट्स थिंग्स, मैनेजमेंट ने कुछ बोलो, कुछ और समझ लेता. सो डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, जो एक्चुअल में है बोला है वही फैक्चुअल, डोंट एक्स्ट्रापोलेट. ओके, बी स्केप्टिकल बट फेयर. Simple English, because in case we are new to this company, okay, we don't want a lot of, jargons over here. It has to be in simple English. Okay, signals and meaning पे जाओ. Okay, short bullets, tables, crisp sections बना. अभी क्या होता है, what I've learned so far using AI is के अगर उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दिया, if you don't give a structure, okay, every time they'll come up with a very different format. Okay, so what happens is, what I keep doing is I keep using this AI tool अलग अलग कंपनीज में, and I get the output in the same structure. So comparison also becomes very simple. Yes, तो हमेशा whenever you are building any AI prompt for you guys as well, make sure you have an output structure, okay, given to the AI. अगर आप स्ट्रक्चर नहीं दोगे तो बहुत बहुत गलत आउटपुट आता है, वो बराबर नहीं आता. So it's better to give an output structure. ठीक है, अभी समझते हैं क्या स्ट्रक्चर दिया हमने. फर्स्ट, बिजनेस बेसिक्स. इट इज बेटर इफ यू आर ट्रैकिंग 20-25 कंपनीज, ओके, तो आप भूल जाओगे क्या बिजनेस मॉडल था. सो इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, वी नीड अ बिजनेस बेसिक्स. कंपनी क्या करता है, कैसे पैसे बनाता है, रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, कोई यूनिक एडवांटेज है कि नहीं. ओके, दिस शुड मेक सेंस इवन टू समवन हियरिंग द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम. बिजनेस बेसिक्स. सेकंड, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द कॉन कॉल. पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल का मैक्सिमम 5-6 बुलेट्स में समरी चाहिए. एक कॉन्फिडेंट, क्या टोन था मैनेजमेंट का, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे है ओवरऑल, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस क्वार्टर, क्या हुआ, मार्जिन ऊपर हुआ नीचे हुआ, कैश फ्लो नहीं बन रहा, वॉल्यूम लेड ग्रोथ है, प्राइस लेड ग्रोथ है. ओके, ऑल दोस एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड.
ओके, इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे अभी आईटी कंपनी, ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द आईटी थिंग recently what has happened, okay, तो next conference call, managements will give a lot of knowledge about what is happening in the industry. जैसे टैरिफ वॉर चल रहा था, okay, US had imposed a lot of tariff on us. So a lot of companies were continuously explaining कि because of this tariff उनके प्रोडक्ट का डिमांड कितना कम हुआ है, what do they feel in the future. So थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स का डिस्कशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमें समराइज करके मिल जाएगा. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सिग्नल्स एंड क्रेडिबिलिटी. समटाइम्स एनालिस्ट्स अलग अलग तरीके से एक ही चीज पूछ रहे हैं. ओके, मैनेजमेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट मैनेजमेंट ना डॉज कर रहा है क्वेश्चन. So we have told AI to pick the tone and behavior. You're transparent है या evasive है. ओके, कॉन्फिडेंस जेन्यून लग रहा है कि नहीं. जैसे ना एक एग्जांपल दू, जस्ट डायल वाला. जस्ट डायल में क्या हो रहा है, ओके, एवरीवन इज वेटिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ कैश इन अ बैलेंस शीट, एवरीवन इज वेटिंग कि व्हेन विल दे डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड. तो हमेशा सारे एनालिस्ट जो बैठते हैं सीधे तरीके से उल्टे तरीके से, एवरीवन इज कंटिन्यूसली आस्किंग, ओके, डिविडेंड के बारे में, एंड मैनेजमेंट इज नेवर रेडी विद द परफेक्ट आंसर के नेक्स्ट क्वार्टर दे देंगे, ये क्वार्टर दे कीप डॉजिंग द क्वेश्चन. तो करेक्ट, सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो ये सेक्शन से हमें पता चल जाएगा सेक्शन 5 से कि इज देयर समथिंग जो कंटिन्यूसली मैनेजमेंट अवॉइड कर रहा है. करेक्ट. देन फॉरवर्ड आउटलुक एंड कैपिटल एलोकेशन के गाइडेंस क्या दिया है. Super important. Super important. Earlier, what I used to do, I used to sit with a notebook and a diary. Okay. When I used to read the con call, वो डायरी लेके बैठने का. ठीक है, वॉट एवर गाइडेंस, इफ लेट्स से दे आर सेइंग के 2 साल बाद इफ द रेवेन्यू इज गोइंग टू ग्रो बाय 20%, तो लिख देने का डायरी. सो बिकॉज गाइडेंस इज स्कैटर्ड इन द होल होल कॉन कॉल, 12-15 पेजेस में द गाइडेंस इज ऑलवेज स्कैटर्ड. यू हैव टू एसिमिलेट देम. तो यहाँ पे तो आपको जरूरत ही नहीं है. रिस्क, ओके, क्या क्या रिस्क है, और ये अलग सेक्शन है रिस्क का, बिकॉज आई वांट टू एग्जैक्टली नो कि व्हाट आर द थ्रेट्स. मैनेजमेंट विल से वील रीच रेवेन्यू ऑफ दिस मच, एबिट ऑफ दिस मच, बट वो करने में व्हाट आर द रिस्क्स. एनालिस्ट क्यू एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स क्या थे, वो हमें यहाँ पे समराइज्ड वे में चाहिए. देन आता है की नंबर्स टेबल, सुपर इंपॉर्टेंट. ये दिस इज अ गेम चेंजर. आई यूज टू नॉट यूज दिस अर्लियर, बट दिस हेल्प्स मी अलॉट. की नंबर्स टेबल. की नंबर्स टेबल में क्या होता है, पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइस, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर है ना, ओके, तो उसको लेके एक टेबल बना के दे देंगे. as I told you, the guidance and everything is very scattered in the whole call. ठीक है, तो ये आपका वो एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी करके देता है एआई, वेर इन यू नो कोई भी नंबर है, एनी नंबर scattered, they will collect the numbers, make give it to you in the table. So then accordingly you can analyze कि इसका क्या कर सकते हैं. If you want to forecast 2 साल का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना, वेरी इंपॉर्टेंट. की इनसाइट्स टेबल, यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे कि अगर ये हुआ तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. गोल्ड प्राइस बढ़ा तो इट इज गुड फॉर कल्याण ज्वेलर्स और बैड फॉर कल्याण ज्वेलर्स, राइट. कनेक्टिंग द डॉट्स. देन कनेक्टिंग द डॉट्स, ये बहुत हेल्प कर रहा है मुझे सेक्शन. ओके, काफी टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द कॉन कॉल, बट हाउ डू यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स इज वेरी गुड. एंड देन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक सिग्नल टाइप समरी मिलेगा, जहां पे यू विल गेट ग्रीन, येलो एंड रेड कलर्स, कि पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल में व्हाट ऑल वो पॉजिटिव, where do we need to be cautious, and what are the bad things that were discussed. Okay, and then there is a conclusion, sharp conclusion, कि ये अपना टेकअप है फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस. सो गाइस अभी ध्यान दो. ओके, ये अपन क्या करेंगे, वील टेक अ कंपनी कॉल्ड टाइटन. वो विराज ने बोला परफेक्ट आई गेस एग्जांपल है. टाइटन लेते हैं, टाइटन का लेटेस्ट वी हैव टू डाउनलोड. सो आई शो यू, यू हैव टू बेसिकली गो ऑन स्क्रीनर, यहाँ पे लिखो टाइटन. ठीक है, टाइटन कंपनी में गया, यू हैव टू गो एट द एंड, एंड यहाँ पे लेटेस्ट फेब का कौन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन द ट्रांसक्रिप्ट, तो आपका ट्रांसक्रिप्ट पूरा आ जाएगा, डाउनलोड इट, और फिर उसको अपलोड कर देंगे. सिंपल प्रॉम्प्ट अपना ये मैंने कॉपी कर दिया, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दिया. सिंपल. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट अपलोड. अपलोड कर दिया. टाइटन का Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 का ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल. सिंपल.
Everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. We'll give it a minute. Okay. गाइस देखो ये पूरा प्रॉम्प्ट जो हमने डिस्कस किया, इट इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉम्प्ट. ओके. एंड आपने, यू हैव जस्ट अपलोडेड द, क्या बोलते हैं, द ट्रांसक्रिप्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. शुड वी स्टार्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अभी फॉर पीपल हु डोंट नो, टाइटन क्या करता है? फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सो दैट ऑल ऑफ अस कम ऑन द सेम पेज. टाइटन सेल्स ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर, fragrances, fashion accessories and runs online jewelry via Carrot Lane. Jewelry is the largest business. So बहुत सारे धंधे करता, बट ज्वेलरी उनका सबसे बड़ा बिजनेस है टाइटन का. हाउ डज इट मेक मनी? रेवेन्यू मेनली कम्स फ्रॉम ज्वेलरी सेल्स. उनका मेन है ज्वेलरी सेल्स, राइट? Plus smaller contribution from watches, eyewear and other lifestyle segments. Jewelry growth 40% versus other divisions. Jewelry share rising. Carrot Lane has 85 to 90 studded mix. 20 to 25% jewelry sales from purchase plans. Oh wow. More than 15 involves gold exchange. These show jewelry dominance and customer financing or exchange behavior. बराबर है? सबको समझा यहाँ था? बेसिकली टाइटन क्या, टाइटन आईवेयर सुना होगा, टाइटन के वॉचेस आते हैं, बराबर है. बट उनका सबसे बड़ा बिजनेस ज्वेलरी बिजनेस है, मेजोरिटी रेवेन्यू ज्वेलरी से आता है. अभी एक एक पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखोगे यहाँ पे ज्वेलरी का ग्रोथ, सो द तनिष्क, तनिष्क का ग्रोथ एंड द ज्वेलरी ब्रांड इन जनरल ऑफ टाइटन इज ग्रोइंग एट अ वेरी हायर पेस देन ऑल अदर डिविजन्स. परफेक्ट. स्टडेड मतलब वो डायमंड स्टडेड होता है ना, डायमंड ज्यादा, लेस गोल्ड मोर डायमंड एंड अदर थिंग्स. करेक्ट. इफ यू विल सी 20 to 25% ज्वेलरी सेल्स फ्रॉम परचेज प्लान्स. मतलब परचेज प्लान समझता है आप? इफ यू गो टू तनिष्क ना, तो वहां स्कीम्स होता है कि आप हर महीने 5,000 5,000 5,000 का SIP टाइप्स करो, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल कंप्लीट होता है, दे विल गिव यू सम बोनस, और आपका पैसा जमा हो गया, नाउ यू कैन बाई समथिंग, वैसा. Understood? So plans and all. So 20 to 25% jewelry sales from purchase plans and 50% involves gold exchange. मतलब पता है क्या होता है गोल्ड एक्सचेंज? मतलब इफ आई वांट टू बाय अ ज्वेलरी एट तनिष्क, ओके, मेरे को नया गोल्ड नहीं खरीदना, मैं मेरे घर का पुराना गोल्ड दे दूंगा एंड आई विल बाय न्यू गोल्ड. अंडरस्टूड? सो 50% इन्वॉल्व, तो आधा सेल्स जो उनका हो रहा है वो एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है. इज दिस क्लियर? ओके. Yes, sir. एग्जीक्यूटिव समरी जाता है कॉन कॉल में क्या हुआ था. वेरी स्ट्रॉन्ग फेस्टिव क्वार्टर डिमांड डिस्पाइट वॉलेटिलिटी एंड कंपटीशन. तो क्वार्टर अच्छा रहा. जनरली ना ज्वेलरी कंपनीज का थर्ड क्वार्टर बेस्ट होता है, बिकॉज दिवाली वगैरह होता है. यस, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेस्ट मंथ, सो द क्वार्टर थ्री इज बेस्ट फॉर ऑल ज्वेलरी कंपनीज. ज्वेलरी ड्रोव ग्रोथ, मार्जिन प्रेशर्ड बाय राइजिंग गोल्ड प्राइस. गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, करेक्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम. एब्सोल्यूट EBIT और PBT राइजिंग इवन इफ परसेंटेज मार्जिन अंडर स्ट्रेस. Okay. Consumer demand supported by weddings plus FOMO from gold rally. Confident but cautious on margins and gold volatility. ये उनका, ये पूरे कॉन कॉल का समरी है. Now what actually happened in the quarter? Okay, let's read. Real business movement. Demand strong in festive plus wedding season. तो मतलब फेस्टिव वेडिंग सीजन था इसलिए क्वार्टर थ्री अच्छा हुआ. बायर ग्रोथ फ्लैट बट टिकट साइज शार्पली हायर ड्यू टू गोल्ड प्राइस. न्यू बायर मिक्स 45%. इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज के बायर का ग्रोथ फ्लैट है, नंबर ऑफ पीपल कमिंग एंड बाइंग इज समवॉट द सेम, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं है, बट पर पर्सन बाइंग इज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज पहले अगर आपको एक 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 लेट से कड़ा लेना था गोल्ड का, वो 2 लाख का आता था, अभी वही सेम चीज 3 साढ़े 3 लाख का आ रहा है. यस, द टिकट साइज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस, दैट बेसिकली. Yes, growth mainly price led plus wedding demand. Studded ticket size 15% versus plain gold. Okay. Jewelry gross margins declined due to higher gold coin mix. So I'll explain this. होता क्या है? सी, एवरीवन अंडरस्टैंड तनिष्क कमाता कैसा? अगर मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वे से बताऊं, तो हाउ डज तनिष्क अर्न? इट अर्न्स फ्रॉम द मेकिंग चार्जेस. तनिष्क को गोल्ड प्राइस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रादर थोड़ा डिसएडवांटेज है. व्हेन द गोल्ड प्राइस, अ लॉट ऑफ अस व्हाट वी थिंक इज, पीपल हु डोंट ट्रैक ज्वेलरी कंपनीज, दे फील दैट गोल्ड का प्राइस बढ़ा, तनिष्क है सो मच गोल्ड, so they are earning more, they are more. That is not the case, that is not the case. Tanishq does not buy gold a lot, वो लीज पे लेते बैंक से. They take a lot of gold on lease from banks. That is how it works. So
अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है, इट डजंट उनको फर्क नहीं पड़ता। होता क्या, बिकॉज तनिष्क गोल्ड कॉइन्स भी बेचता है, कॉइन्स में मेकिंग चार्ज कम होता है। सो इफ पीपल आर बाइंग मोर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ओके, देयर मार्जिन इज डिक्लाइनिंग। समझा? राइजिंग गोल्ड कॉस्ट इन स्टडीड ज्वेलरी, ज्वेलरी शेयर इंक्रीज इन कंपनी मिक्स, ओके, हाई एक्सचेंज पार्टिसिपेशन प्लस परचेज स्कीम सपोर्ट लिक्विडिटी, इन्वेंट्री फंडिंग स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, वो तो है ही। इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल फैक्टर, भाई क्या चल रहा है ये पूरे ज्वेलरी गोल्ड सेगमेंट में? ओके, गोल्ड प्राइस सर्ज एंड वॉलेटिलिटी सेंट्रल मैक्रो ड्राइवर, वेडिंग डिमांड स्ट्रक्चरली सपोर्टिव, फॉर्मलाइजेशन में कंटिन्यू बट नो मेजर न्यू कंसोलिडेशन विजिबल। ठीक है, तो मतलब गोल्ड प्राइस बहुत वॉलेटाइल है ना, बिकॉज ऑफ विच, सी, जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, पीपल अवॉइड बाइंग ज्वेलरी। उनको लगता है कि एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर कुछ खरीदेंगे, ऐसा कुछ। ओके, तो ये क्वार्टर थी अच्छा होने वाला था बिकॉज वेडिंग सीजन है तो लोग लेने ही वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉलेटरीली जो लेने वाले, दे स्टॉप, दे डिले देयर परचेज। मैनेजमेंट सिग्नल्स एंड क्रेडिबिलिटी, क्लियर एडमिशन ऑफ मार्जिन प्रेशर फ्रॉम गोल्ड, नो वन ऑफ प्रॉफिट मास्किंग। बहुत ट्रांसपेरेंटली बोल दिया उन्होंने कि उनके मार्जिन कम हो रहे ओवर हियर। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन डिमांड एक्सचेंज मॉडल यंगर कंज्यूमर्स, रिफ्यूजल टू गाइड क्वार्टर फोर ड्यू टू गोल्ड वॉलेटिलिटी। तो मतलब पूछा लोगों ने, एनालिस्ट ने, कि क्वार्टर फोर में कितना रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है, बट दे रिफ्यूज टू गिव एनी गाइडेंस बिकॉज गोल्ड प्राइस इतना वॉलेटाइल है, दे ऑल्सो डोंट नो। ठीक है, फॉरवर्ड आउटलुक एंड कैपिटल एलोकेशन, ओके, उन्होंने क्या किया, दामस में एक्सपेंशन किया। ओके, प्रेशर परसिस्ट इफ गोल्ड कीप्स राइजिंग, एब्सोल्यूट प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंट देन परसेंटेज मार्जिन। सो दे आर सेइंग कि प्रॉफिट होगा बट मार्जिन स्क्वीज हो रहा। एक्सपैंड लाइट वेट लोअर कैरेट ज्वेलरी। आपको मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट समझा? इफ लेट से गोल्ड का प्राइस है 1 लाख, ओके, तनिष्क अर्न्स, टाइटन अर्न्स नॉट फ्रॉम दैट 1 लाख, बट उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस पे वो लोग अर्न करते हैं। बट इफ गोल्ड, इफ लेट्स से गोल्ड इज 1 लाख, ऊपर 20,000 इज मेकिंग चार्जेस, दे सेल एट 1,20,000 तनिष्क का रेवेन्यू, दैट इज व्हाट तनिष्क अर्न्स, 20,000 मेकिंग चार्जेस देयर रेवेन्यू बेसिकली। नाउ इफ गोल्ड का प्राइस has become 2 lakh, they cannot ऊपर or charge a lot of making charge, customer will not come only. So if the gold price keeps rising, customer is finding difficult to buy gold, 2 lakhs भी, उसके ऊपर you apply a huge making charge, people will not come only to buy, right? So what is happening over here is the margin is squeezing. पहले the jewelry companies were able to charge a lot of margin, with the margin that they are able to charge is less because as such the gold ka price is rising. If they charge huge making charge also, or people will stop buying from them, they'll go to some other competitor customer, other jewelry store, right? तो ये हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रैटेजी क्या है उनका? अभी ये गोल्ड का प्राइस तो अपने कंट्रोल में नहीं है। व्हाट इज टाइटन डूइंग, दे आर एक्सपेंडिंग लाइट वेट लोअर कैरेट ज्वेलरी। महंगा पड़ रहा है ना, तो कम कैरेट वाला आप बेचो। स्ट्रेंथन एक्सचेंज प्लस परचेस प्लान्स, स्केल कैरेट लेन टू डबल डिजिट ईबीआईटी। रिस्क क्या? मार्जिन कंप्रेशन फ्रॉम गोल्ड इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा रिस्क वही है। एक गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, मार्जिन और कम होगा। वीक डिमांड इन 1 लाख स्टडेड सेगमेंट, ओके, गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी अपने कंट्रोल में नहीं है, ज्वेलरी डोमिनेंस लोअर्स कंपनी लेवल मार्जिन, बराबर है। अभी क्यू एंड ए में क्या हुआ? ओके, वो एनालिस्ट के क्वेश्चंस क्या थे, उसमें क्या आंसर है? गोल्ड वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट, बायर ग्रोथ वर्सेस टिकट साइज, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। देखो, डिमांड स्ट्रांग बट मार्जिन विजिबिलिटी वीक। बोल रहे ग्रोथ है, ग्रोथ में वो प्रॉब्लम नहीं है, पीपल आर स्टिल बाइंग गोल्ड, बट द प्रॉब्लम इज मार्जिन। ग्रोथ इंक्रीजिंगली टिकट साइज ड्रिवन, जो ग्रोथ आ भी रहा है, जैसे मैंने बोला, पहले 5 people वर बाइंग, स्टिल 5 people आर बाइंग। अर्लियर 1 लाख में कुछ आ रहा था, अभी 1 लाख में तो कुछ ज्वेलरी नहीं आता। सो पर पर्सन हैज टू बाय। तो वो जो गोल्ड इन्फ्लेशन है, गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, उसकी वजह से टिकट साइज बढ़ा है, उसकी वजह से रेवेन्यू इज शोन हाई, दैट्स इट। इंटरनेशनल मार्जिन 5 to 6% करेंटली, सब 1 लाख सेगमेंट अंडर प्रेशर, ओके। की नंबर्स टेबल, जो मैंने बोला ना सबसे फन चीज है, ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बायर मिक्स इज 45%, तो डिमांड हेल्थ है, मतलब ज्यादा लोग ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। ग्रोथ रेवेन्यू कंटिन्यूसली दे आर सेइंग इज गुड, मार्जिन्स प्रॉब्लम, ओके। एवरेज टिकट साइज 1.9 lakhs. So this tells us a lot about the premiumization theme also. 1.9 lakh is the average ticket size. इतना
ऑन एन एवरेज लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टडेड मिक्स कैरेट लाइन 85 to 90%, परचेस प्लान शेयर 20 to 25%, एक्सचेंज लिंक्ड यस 50%, इंटरनेशनल मार्जिन 5 to 6, ठीक है। की इनसाइट्स टेबल, इनसाइट्स क्या मिल सकती है अपन को यहाँ से? रेवेन्यू ग्रोथ लार्जली गोल्ड प्राइस ड्रिवन, margins structurally pressured, so it is a negative thing. Okay, absolute profit still strong, exchange model strengthens resilience, and यहाँ पे weakness है वो पता है ना। connecting the dots, dots क्या connect हो रहा है? Titan delivered a strong revenue quarter driven by weddings and gold inflation. Okay, however this is not pure volume strength, partly price led growth. Margins are under structural pressure until gold stabilizes. Yet Titan's brand power, exchange model, balance sheet allow market share gains, absolute profit growth, and global expansion. तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस बट मैक्रो ड्रिवन मार्जिन है। तो बिजनेस अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग, देर इज ग्रोथ, बट द प्रॉब्लम इज द मार्जिन्स। प्रॉब्लम इज कि गोल्ड प्राइस वॉलेटाइल रहेगा तब तक पीपल विल नॉट बाई मच। इन्वेस्टर के लिए क्या समझना है ये क्वार्टर का कंक्लूजन क्या है? अच्छी चीजें क्या है? डिमांड अच्छा है, वेडिंग सीजन था इसलिए, राइजिंग प्रॉफिट्स है, एक्सचेंज वाला इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है, ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है कंपनी, यस। कॉशियस क्या है? ग्रोथ पार्टली प्राइस लेड है, प्राइस लेड ग्रोथ है, ठीक है। 1 लाख, मतलब जो 1 लाख वाला कैटेगरी है ना उसमें डिमांड कम आ रहा है, मार्जिन विजिबिलिटी भी लो है, ओके। सस्टेन गोल्ड इन्फ्लेशन कैन कंप्रेस प्रॉफिटेबिलिटी, ज्वेलरी मिक्स कंसंट्रेशन रिस्क है, ओके। फाइनल इन्वेस्टर कंक्लूजन, ये सारी चीजें इंप्रूव हुई है, ये सारी चीजें वर्स हुई है। हमें नेक्स्ट क्वार्टर से ट्रैक क्या करना है? गोल्ड प्राइस का ट्रेंड ट्रैक करना है, मार्जिन स्टेबिलाईजेशन, वॉल्यूम वर्सेस प्राइस ग्रोथ, एंड ये दमास में जो कंपनी अक्वायर की उसका इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट किया था, ओके। वन लाइन इनसाइड, टाइटन इज एग्जीक्यूटिंग स्ट्रांगली बट नियर टर्म रिटर्न्स डिपेंड मोर ऑन गोल्ड प्राइसेस देन बिजनेस क्वालिटी। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Also, sir, हम्म सर कल ना इंस्टाग्राम पे क्राउजल पढ़ा मैंने, और तो हम्म ना इसके बारे में था, इट वॉज अबाउट टाइटन. सो व्हाट दे टोल्ड, व्हाट टाइटन इज डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर लोकल ज्वेलर्स, दैट their mix is different. Like mostly ratio 3:7 to 3 का होता है. 7 is the gold and 3 is the diamond studded mix. But Titan का एग्जैक्ट अपोजिट है, वो 3 प्योर गोल्ड में खेलते हैं, 7 डायमंड इसमें खेलते हैं, तो उसमें उनको मार्जिन ज्यादा मिलता है. marginal. So हाँ जैसे ultimately this is about whole margin game only. वो कहाँ एग्जैक्टली सर. कहाँ ज्यादा मार्जिन मिल रहा है ना उनको। सी गोल्ड में कमाने का कुछ है ही नहीं, बिकॉज द प्राइस इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज ट्रांसपेरेंट टू ऑल। डायमंड में ऐसा कुछ प्राइस फिक्स नहीं होता, उसके शेप, उसके कट, उसका कैरेट, सब पे डिपेंड करता है प्राइस। तो ऐसा कांस्टेंट प्राइस नहीं होता। यहाँ पे सी गोल्ड का प्राइस इज सेम, ओके। टाइटन कैन नॉट से कि मेरे गोल्ड का प्राइस इतना है, गोल्ड तो गोल्ड होता है, हर जगह सेम होगा। सो दे हैव टू प्ले विद द मार्जिन ओनली। क्या बोलते हैं, दे हैव टू प्ले विद द मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज का गेम है उनका पूरा, ठीक है। यस सर. Iqbal is saying we have to compare with the previous con call. I actually have been using, I have been experimenting with a prompt like that, जहाँ पे we will upload a lot of con calls, लास्ट 8-10 कॉन कॉल, और फिर हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट ने जो पहले बोला था वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। सो आई बीन प्लेइंग विद इट, एक बार प्रॉपर हो जाएगा तो इकबाल सर आई विल डू वन सेशन ऑन दैट एज वेल। एक आई वाज टेकिंग अ बैच ऑफ सीएफए स्टूडेंट्स, और मैंने लेक्चर में से बोला कि गाइस बोर हो रहा है, बहुत थियोरी हो गया, तो लेट्स सिट फॉर अ कॉन्फ्रेंस कॉल। तो हम एक्चुअली में 10 मिनट एक कंपनी के कॉन कॉल में बैठ गए थे, सब सारे सारे दिन साथ। यू गाइस वांट टू सी हाउ टू डू दैट? Yes, sir. यस सर. यस सर. वील गो ऑन परप्लेक्सिटी, ओके। परप्लेक्सिटी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस Yes. सर. हाँ देखो, परप्लेक्सिटी में जाना, परप्लेक्सिटी फाइनेंस, एंड देन यहाँ पे जाके अर्निंग्स पे जाओगे। Yes. अभी देखो आज तो कोई अर्निंग कॉल है नहीं, बिकॉज संडे में जनरली कोई करेगा नहीं, बराबर है। पर आप यहाँ पे, मतलब आज अगर कोई कॉल होता ना गाइस, तो मैं क्लिक करता यहाँ पे, और जैसे ये 16 फेब है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये कल सुबह फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड का है। तो अगर 11 बजे आप यहाँ पे आ गए, अर्लियर पीपल हैड टू रजिस्टर फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल, नाउ ऑल्सो पीपल डू। पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, सिर्फ सुनना है, तो यहां पे आप आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने मिलेगा, विदाउट रजिस्टरिंग, विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर,
और कोई भी प्रोसेस वेबसाइट पे कुछ नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पे आओ और बैठ जाओ कॉल कॉल। यस। अगर आपको देखना है अभी, जैसे अर्निंग्स है, अभी एक ट्राई भी करते हैं ना अपन। ओके, 14th फेब, कल कौन सा कॉल था? पीटीसी का कॉल था। सी गाइस, शक्ति पंप्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज, 13th फेब को कितने सारे कॉल्स हुए था। ओएनजीसी, ल्यूपिन, मजगांव डॉक, इन्फोएज। देखो इन्फोएज है, ठीक है, ये उनके हाइलाइट्स है, ये उनका ट्रांसक्रिप्ट है। अभी आपको बैठना है अगर ये कॉल में, इफ यू वांट टू हियर द कॉल, ओके, सी। Let me tell you what's happening. See, we have been experimenting over the last few quarters with different go-to-market and bundling strategies, right? And for our newer offerings, right? And I think it'll take a while, maybe a quarter or two, for the dust to settle down on that front till we get it right. And I think that's what is perhaps creating this this issue that you're seeing. You've rightly identified it. We're trying to figure out whether clients, so sometimes to get higher billing, we push these offerings onto customers. We want to see whether customers really want them. सबको समझा, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अभी देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल इश्यू क्या आता है पता है? वेन एवर कॉन्फ्रेंस कॉल गाइस, एक कॉन्फ्रेंस कॉल कंडक्ट होता है, एज पर सेबी 5 days के अंदर अंदर यू हैव टू अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल। समझा? 5 दिन के। और इफ यू डोंट वांट टू वेट फॉर 5 days, तो आप क्या जुगाड़ कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लेता है स्काई गोल्ड। सर ये क्या हो रहा है आपको, क्यों आज ज्वेलरी कंपनी ही ले रहे हो? पता नहीं, मन हो गया। स्काई गोल्ड। तो इफ यू टेक स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, ओके, अगर आप देखोगे इसका कॉन्फ्रेंस आया क्या है, इसका कॉन्फ्रेंस कॉल अभी तक? हैज द कॉन्फ्रेंस कॉल कम? No, sir. No, द sir. ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट देयर, व्हाई? बिकॉज 10th फेब को कौन कॉल हुआ था, टुडे इज 15th फेब, तो आज 5th डे है, तो बाय द एंड ऑफ टुडे और टुमारो आपको मिल जाएगा। पर आई वांटेड टू एनालाइज इट क्विकली बिकॉज आई हैव द एआई प्रॉम्प्ट नाउ, तो आई वांट टू ट्राई इट इमीडिएटली, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो शुड आई टेल यू व्हाट यू कैन डू? दिस इज हाउ मे बी सी। कभी कभी अगर नहीं चल रहा है ना अपना, क्या बोलते हैं, परप्लेक्सिटी में नहीं आ रहा है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। करेक्ट? I have to now just copy paste this transcript and use the same prompt. Yes, so I can copy this, okay, and then try this. Okay, transcript. Maybe you can convert it, of sky gold. You can convert it into PDF और पूरा ऐसा अपलोड कर सकते हो। Q3 FY26, ओके, एंड फिर अपना अपन कौन कॉल, हाँ, ये डाल देते हैं। We have this ready. So nice. What Sky Gold does is a jewelry manufacturer. So जैसे बड़े तनिष्क जो है, टाइटन जो है ना, वो सप्लाई चेन में आगे आ रहा है। ओके, मतलब इट इज आफ्टर स्काई गोल्ड, उसके पहले इट इज अ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, रिटेलिंग नहीं करता ये। ओके, तो स्काई गोल्ड मेक्स द ज्वेलरी एंड सप्लाई कर देता। हाउ डू दे अर्न मनी? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग चार्जेस। ओके, ये सारी चीजें करते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट उसका क्या है, व्हाट इट सेल्स, स्पेशल क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी आ गया। यस, एग्जैक्टली सेम जैसा हमने तनिष्क का किया वैसा आप कर सकते हो। सो मे बी इफ यू वांट टू मेक अ वेरी होलिस्टिक थिंग ना, प्रॉपर एनालिसिस करना, सेम सेक्टर के 3-4 कंपनी का कॉन कॉल ले लो, तीनों तीन अलग अलग करो ये, तो आपको पूरे सेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। एक बार ट्राई करना गाइस। देखो क्यूएनए भी बहुत अच्छे से आ रहा है यहाँ पर। करेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछा, एनालिस्ट ने आंसर क्या दिया। ओके, क्वेश्चन थीम, एनालिस्ट ने क्या पूछा और देन मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिया, बहुत अच्छे से आ रहा है। की नंबर टेबल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। की इनसाइट्स टेबल भी आ गया।
and then connecting the dots. बहुत सही है. So the output is very amazing over here as well. वही है कि आपको थोड़ा मेहनत करके you will have to convert it into transcript and then upload. ChatGPT ऑडियो से आंसर नहीं दे पा रहा बराबर. Is this sorted, guys? Yes. I hope you guys had fun. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, if you found the output, ये जो मैंने prompt बनाया है, if you find this well, मैंने ना एक LinkedIn post किया on this and I asked a lot वहां पे कि अगर किसी को बैठना है आज के सेशन में they can sit. So because of which we have more participants than other sessions. तो प्लीज वो एक सेकंड में शेयर कर दूंगा if you want the LinkedIn post. If you could put your feedbacks on that पोस्ट ओनली कि आपको प्रॉम्प्ट कैसा लगा, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो कि द आउटपुट इज गुड. और अगर आपने प्रॉम्प्ट ट्राई किया, आई शेयर द प्रॉम्प्ट विद यू गाइस इन द सर्कल ऑफ क्लैरिटी का व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ ओनली. तो प्लीज ट्राई एक बार अगर आप कर सकते हो ना. सेकेंड मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर देता, अरे अब मैं आपको लिंक्डइन का वो शेयर कर देता हूँ. तो गाइस प्लीज टेल मी आपका ऑनेस्ट फीडबैक यहाँ पे, ठीक है. एंड ऐसा ही कुछ अपन करते रहेंगे सेशंस. गाइस आपको ठीक लगा आज का सेशन? व्हाट डू यू फील? मस्त था सर, मस्त था सर बहुत. एआई वाले ऐसे सेशंस करने अपन को आगे वहां पे. यस सर, Yes. बढ़िया लगा.